پہلی سے 8ویں جماعت کے امتحانات کے لیے ڈیٹ شیٹ جاری۔ مجموعی طور پر 81 لاکھ بچوں کا امتحان ہوگا۔ پہلی اور دوسری جماعت کے بچے زبانی، تیسری سے 8ویں جماعت کے بچے تحریری امتحان دیں گے۔ پیک کی پہلی سے 8ویں جماعت کے امتحانات کے لیے ڈیٹ شیٹ جاری کر دی گئی۔ پہلی اور دوسری جماعت کے بچوں کا زبانی امتحان ہوگا۔ تیسری سے 8ویں جماعت کے بچوں سے تحریری امتحان لیا جائے گا۔ 18 اور 19 جون کو انگریزی کا پرچہ ہوگا۔ 21 اور 22 جون کو اردو کا پیپر ہوگا۔ 23 اور 24 جون کو ریاضی، 25 اور 26 جون کو اسلامیات کا امتحان ہوگا۔ 28 اور 29 جون کو سائنس، 30 جون کو معاشرتی علوم، عربی، زراعت اور کمپیوٹر کا امتحان ہوگا، جبکہ نتائج کا اعلان 10 جولائی کو کیا جائے گا۔ گرمی کے رنگ دکھاتے ہی لیسکو کا سسٹم بھی آنکھیں پھیر گیا۔ گرین ٹاؤن ملٹری اکاؤنٹ سوسائٹی اور مہلکہ علاقوں میں کل صبح سے گئی بجلی آج واپس آئی۔ 1 گھنٹے کے لیے دیدار کرایا اور پھر سے 2 سے 3 گھنٹے کی جدائی۔ بچے شدید گرمی سے نڈھال ہو چکے ہیں۔ علاقے میں پانی کی بھی قلت ہے۔ مکینوں کا صبر جواب دے چکا ہے۔ تو آپ کو بتائیں، گرمی کے رنگ دکھاتے ہی لیسکو کا سسٹم بھی آنکھیں پھیر چکا ہے۔ گرین ٹاؤن ملٹری اکاؤنٹ سوسائٹی اور مہلکہ علاقوں میں کل صبح سے گئی بجلی آج واپس آئی اور 1 گھنٹے کے لیے دیدار کرایا اور پھر سے 2 سے 3 گھنٹے کے لیے چلی گئی۔ بچے شدید گرمی سے نڈھال ہو چکے ہیں اور علاقے میں پانی کی بھی قلت ہے۔ مکینوں کا صبر اس وقت جواب دے چکا ہے اور یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جلد سے جلد بجلی بحال کی جائے۔ شدید ذہنی اذیت سے دوچار ہیں یہاں کے علاقہ مکین۔ گرمی آئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ بجلی کا نظام بھی جواب دینے لگا ہے۔ گرین ٹاؤن ملٹری اکاؤنٹ سوسائٹی اور مہلکہ علاقوں میں کل صبح سے گئی بجلی آج واپس آئی، جبکہ 1 گھنٹے کے لیے بجلی نے اپنا دیدار کروایا اور پھر سے 2 سے 3 گھنٹے کے لیے چلے گئی۔ بچے شدید گرمی سے نڈھال ہیں، بڑے بھی شدید ذہنی اذیت سے دوچار ہیں، جبکہ پانی کی بھی قلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مکینوں کا صبر اس وقت جواب دے چکا ہے۔ آپ کو بتائیں، گرمی کے رنگ دکھاتے ہی لیسکو کا سسٹم بھی آنکھیں پھیر گیا۔ گرین ٹاؤن کے یہ حالات ہیں، ساتھ ہی ساتھ ملٹری اکاؤنٹ سوسائٹی اور مہلکہ علاقوں میں کل صبح سے بجلی گئی اور تھوڑی دیر کے لیے ہی واپس آئی۔ رانا اظہر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانیں گے۔ رانا اظہر نور، بتائے گا کیوں بجلی نہیں آ رہی ان علاقوں میں؟ موجود ہوں باگڑیاں کے علاقے میں۔ یہاں پر لوڈ شیڈنگ کے باعث شہری پریشان۔ اگر بات کی جائے تو باگڑیاں کے ساتھ جو ملکہ علاقے ہیں جن میں ملٹری اکاؤنٹ سوسائٹی ہے، اس کے ساتھ امیر چوک ہے، مریم کالونی، اس طرح کے مختلف علاقے یہاں پر لائٹس نہیں ہیں۔ بات کی شہر سے یہاں کب سے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے؟ یہ اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے سر، اور جب مرضی رات کو کر دیں، دن میں کر دیں۔ ابھی آپ موجود ہیں، کوئی طریقہ؟ یہ بند ہے لائٹ، یہ لوگ بلک گئے ہیں، یقین کریں۔ ایک تو جب سے گرمی آ گئی ہے، جب سے بہت زیادہ یہ جا رہی ہے، خدارہ ہمیں یہ بتا دیں کہ اتنے بجے جانی ہے، ہم تیاری کر لیں۔ ہم یہ 5 سیٹوں کا علاقہ ہے جی گرین ٹاؤن کا، یہاں ماشاءاللہ سارے بل دیتے ہیں اور ان کی وجہ سے یہ سارا سسٹم چل رہا ہے۔ آپ کیوں ہمارے ساتھ ایسا کر رہے ہیں؟ تارے ہیں تو وہ خراب ہیں، وہ جناب لوگوں کے گھروں سے گزر رہی ہیں۔ یہاں 2-3 موتیں بھی ہو چکی ہیں، وابڈا والوں پہ پرچے بھی ہوئے ہیں، ان کو کوئی خیال ہی نہیں ہے۔ گورنمنٹ سوئی ہوئی ہے، مزے لے رہی ہے۔ بس کہا کہ یہاں پر جو ہے لائٹ جو ہے وہ جاتی ہے اور کوئی ٹائم ہوتا ہے کہ حکومت جو ہے ٹائم فریم ہوتا ہے، یہاں پر جو ہے لائٹ گئی، لیکن ضروری ہے کہ حکومت کو دیکھے۔ اور بعض اوقات جو ہے لائٹ جاتی ہے 15-20 منٹ کے لیے کے بعد آ جاتی ہے اور پھر چلی جاتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ حکومت کو دیکھے اور جو لوڈ شیڈنگ کا شیڈول دیا جائے گا یہاں پر جو ہے۔ بہت شکریہ رانا اظہر، ہمارے ساتھ تھے، آگاہ کر رہے تھے۔ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام میں پنجاب کو وفاق سے اس سال بھی حصہ پورا نہیں ملا۔ نئے مالی سال کے 900 ارب کے وفاقی ترقیاتی بجٹ میں پنجاب کو صرف 89 ارب روپے ملیں گے۔ پنجاب حکومت نے وفاق سے آئندہ نئے مالی سال کے لیے PSDP فنڈز کے تحت 1 ارب 10 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ مانگا تھا۔ وفاق نے 67 ارب روپے دینے پر رضامندی ظاہر کی، تاہم پنجاب کے احتجاج پر اس کا شیئر 89 ارب روپے کر دیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار اور چیئرمین PND عبداللہ خان کی کوششوں کے باوجود صرف 89 ارب روپے کا فنڈ ملا ہے۔ واضح رہے کہ رواں مالی سال بھی وفاق نے پنجاب حکومت کو وفاقی شیئر سے صرف 45 ارب روپے کا فنڈ دیا تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کم فنڈ ملنے سے پنجاب میں بیشتر بڑے منصوبے اس سال بھی سست روی کا شکار رہیں گے۔ پنجاب حکومت رواں مالی سال ترقیاتی بجٹ کا صرف 48% فنڈ ہی استعمال کر سکی۔ 402 ارب روپے کے ترمیم شدہ بجٹ میں 220 ارب روپے عوامی فلاح کے منصوبوں پر خرچ کیے گئے۔
पंजाब हुकूमत ने रवां साल 337 अरब रुपए का तरक्याती बजट मुख्तस किया। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने तरक्याती फंड का 48% ही इस्तेमाल किया, जबकि रवां माली साल के आखिर तक पंजाब हुकूमत 65% तरक्याती बजट खर्च कर पाएगी। पंजाब हुकूमत ने तरक्याती बजट का 100% फंड इस्तेमाल करने के लिए माहाना 33.33 अरब खर्च करना थे, जबकि पंजाब हुकूमत रवां साल हर माह सिर्फ 17.75 अरब इस्तेमाल किया। रवां माली साल पंजाब हुकूमत अपने नए मंसूबों और तरजीहात पर सिर्फ 23% फंड खर्च कर पाई, जबकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सेक्टर में सिर्फ 7% तरक्याती बजट खर्च हो सका। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब ने फंड के इस्तेमाल में कारकर्दगी का तनासुब पिछले माली साल की निस्बत कम होने पर तशवीश का इजहार किया और इदारों से वजाहत भी तलब की है। हुकूमत पंजाब ने सर्विसेज अस्पताल में नया इमरजेंसी वार्ड तामीर करने का फैसला कर लिया है। मंसूबे पर 1 अरब रुपए लागत आएगी। पंजाब हुकूमत ने सर्विसेज अस्पताल में नया इमरजेंसी वार्ड तामीर करने का फैसला किया है। सर्विसेज अस्पताल में जदीद स्टेट ऑफ द आर्ट इमरजेंसी वार्ड बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर 1 अरब रुपए लागत आएगी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने मंसूबे की मंजूरी दे दी है। यह मंसूबा अगले माली साल के बजट में शामिल कर दिया गया है। सर्विसेज अस्पताल में नया जदीद इमरजेंसी वार्ड बनने से म्यो अस्पताल और गंगाराम अस्पताल पर मरीजों के दबाव में कमी आएगी। लाहौर में ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर करने के लिए 10 साला प्लान पेश कर दिया गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ट्रैफिक मैनेजमेंट और सड़कों की तौसी के लिए 7 खरब 78 अरब रुपए का बजट दरकार होगा। ज़राए के मुताबिक महकमे ट्रांसपोर्ट ने हुकूमत पंजाब को लाहौर शहर में ट्रैफिक की बेहतरी का 10 साला प्लान पेश किया है, जिस पर अमल दरामद के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ट्रैफिक मैनेजमेंट और सड़कों की तोसी के लिए 7 खरब 78 अरब रुपए का फंड दरकार होगा। ज़राए के मुताबिक लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बेहतरी और इजाफे के लिए 2 अरब डॉलर की जरूरत है। शहर में सड़कों की तोसी और रिमॉडलिंग पर 2 अरब 13 करोड़ डॉलर खर्च होंगे, जबकि ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर करने के लिए 23 अरब रुपए दरकार हैं। ज़राए के मुताबिक महकमे ट्रांसपोर्ट के हुकाम ने वाज़े किया है कि सिस्टम में बेहतरी न आई तो आने वाले सालों में ट्रैफिक निज़ाम जवाब दे जाएगा। चिलचिलाती धूप ने शहरियों को निढाल कर दिया। गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए किसी ने किया नहर का रुख तो कोई पहुंच गया ठंडे मशरूबात के स्टॉल्स पर। फैमिलीज भी गर्मी भगाने के लिए स्विमिंग पूल्स में महजूज होती रहीं। उनकी गर्मी जोबन पर है। झुलसा देने वाली गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ गया। शहरियों का कहना है कि गर्मी का तोड़ इन ठंडे मशरूबात में है। गर्मी बहुत बड़ी है ना, इसलिए हम इधर आए बाबा शरबत वाला के पास शरबत लेने आए। बादामी पिए और संदल का पड़ा है, दोनों उसके पास पड़ा है। गर्मी बढ़ने पर बिजली का निजाम भी जवाब दे गया तो शहरियों की बड़ी तादाद ने नहर का रुख कर लिया। ठंडे पानी में डुबकियां लगाई और गर्मी को दूर भगाया। कल रात से हमारी बिजली बंद है पूरे शहर की, इसलिए गर्मी बहुत ज्यादा है, इसलिए हम नहर पे फैमिली के साथ आए हुए हैं। हमारी रात को 1 बजे की लाइट गई हुई है, अभी तक लाइट नहीं आई, तो इसलिए हम फैमिली के साथ बच्चों को लेके आए हैं। जो बच्चे नहर पर नहीं नहा सकते थे, उन्होंने वालिदैन से स्विमिंग पूल खरीदने की जिद की। सड़क किनारे स्टॉल्स पर 500 रुपए से 20,000 रुपए तक स्विमिंग पूल्स फरोख्त किए जा रहे हैं। बड़े तो नहरों में चले जाते हैं, ठीक है, लेकिन बच्चों को हम नहीं लेके जा सकते क्योंकि डूबने का खतरा होता है। लेकिन इसके ये है कि ये जो स्विमिंग पूल्स हैं ये उसके लिहाज से बहुत बेहतर होते हैं, क्योंकि ये तो घर में ना तो डूबने का खतरा होता है, ठीक है, और ये ज़्यादा महंगे भी नहीं होते हैं और आउटिंग में काफ़ी पैसे लग जाते हैं। गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद ने वाटर पार्क्स का भी रुख किया। मुख्तलिफ स्लाइड्स पर खूब मजे किए। लाहौर में लोड शेडिंग बहुत हो रही है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई जा रहा है, गर्मी बहुत हो रही है। उस गर्मी को दूर भगाने के लिए हम लोगों ने फैमिलीज के साथ स्विमिंग पूल्स का रुख करने ताकि गर्मी दूर हो सके हमारी। जिंदा दिल लाहौरिये गर्मी से शिकस्त मानने को तैयार नहीं। शहरियों ने नहर और वाटर पार्क्स पर नहाकर गर्मी भी दूर भगाई और खूब हल्ला गुल्ला भी किया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर्स कोमल, हसनैन और अनाशिया के हमरा फसीउल्लाह, सिटी 42। शहर में नया बिजनेस हब बनाने के इकदाम तेज। लाहौर सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पांव पर खड़े होने के लिए हुकूमत से मदद मांग ली। लाहौर सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ऑपरेशनल मामलात चलाने के लिए हुकूमत से 30 करोड़ रुपए की ग्रांट मांग ली है। अथॉरिटी को 30 करोड़ बतौर सप्लीमेंट्री ग्रांट देने के लिए महकमा हाउसिंग एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की जानिब से समरी काबीना को अरसाल कर दी गई है। काबीना कमेटी बराए खजाना के कल होने वाले इजलास में ग्रांट की मंजूरी दी जाएगी। ग्रांट नई अथॉरिटी के ऑपरेशनल मामलात, भर्तियों और इब्तिदाई अखराजात के लिए मांगी गई है। लाहौर समेत पंजाब भर के 10,000 स्कूलों की कंप्यूटर लैब्स 13 साल बाद भी अपग्रेड नहीं की जा सकी। स्कूलों को 2007 में मिलने वाले कंप्यूटर्स में से 70% नाकारा हो चुके हैं।
महकमे तालीम की गफलत कहें या नाअहली, सुबह भर के 10,000 सरकारी स्कूलों की कंप्यूटर लैब्स को 13 साल बाद भी अपग्रेड नहीं किया जा सका। IT लैब्स को नए कंप्यूटर न मिलने के बायस तलबा नाकारा सिस्टम पर ही पढ़ने पर मजबूर हैं। असाजा का कहना था कि 2007 के बाद किसी एक स्कूल की कंप्यूटर लैब को अपग्रेड नहीं किया जा सका। असाजा ने पंजाब भर की IT लैब्स को फिल 4 अपग्रेड करने का मुतालबा किया है, जबकि स्कूल एजुकेशन अथॉरिटी का कहना है कि कंप्यूटर लैब्स की अपग्रेडेशन का मामला ज़ेरे गौर है। हुकूमत पंजाब की हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ अहम कानून साजी काबीना से मंजूर। स्टाम्प ड्यूटी की नादहिंदा और फीस अदायगी में बेज़ाब्तगियां करने वाली हाउसिंग सोसाइटीज़ अब सर्वमोहर होंगी। हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ अहम कानून साजी की काबीना से मंजूरी मिल गई। स्टाम्प ड्यूटी की नादहिंदा और फीस अदायगी में बेज़ाब्तगियां करने वाली हाउसिंग सोसाइटीज अब सरबमुहर होंगी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने स्टाम्प ड्यूटी एक्ट 1899 में तरमीम करके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर को बाइख्तियार कर दिया है। सरबमुहर होने वाली हाउसिंग सोसाइटीज की अपील सिर्फ चीफ रेवेन्यू कलेक्टर पंजाब, सीनियर मेंबर रेवेन्यू सुन सकेंगे। हाउसिंग सोसाइटी को स्टाम्प ड्यूटी में डिप्टी कमिश्नर के पास रिलीफ देने का इख्तियार भी खत्म कर दिया गया। नादहिंदा सोसाइटीज को आइंदा 10 गुना इजाफी जुर्माना अदा करना होगा। 50 रुपए वाले स्टाम्प को बंद करने की भी मंजूरी दे दी गई है। आइंदा कम अज कम स्टाम्प 100 रुपए का मिलेगा। लाहौर समेत मुल्क भर में अकाउंटेंट्स, ज्वेलर्स और रियल एस्टेट के शोबे से वाबस्ता 25,350 कारोबारी अफराद नॉन फाइलर निकले। FBR में रजिस्टर्ड 6,577 ज्वेलर्स, अकाउंटेंट्स और रियल एस्टेट एजेंट्स अपने गोशवारों में जीरो इनकम जाहिर कर रहे हैं। FBR ने 56,000 अकाउंट्स, ज्वेलर्स और रियल एस्टेट के कारोबार से मुंसलिक अफराद का सर्वे करने का फैसला कर लिया। FBR में 13,406 रियल एस्टेट एजेंट्स, 11,463 ज्वेलर्स और 481 अकाउंटेंट्स नॉन फाइलर हैं। 357 अकाउंटेंट्स, 659 ज्वेलर्स और 5,561 रियल एस्टेट एजेंट्स अपनी आमदन सिफर जाहिर कर रहे हैं। FBR हेडक्वार्टर्स ने नॉन फाइलर और जीरो इनकम जाहिर करने वाले अकाउंटेंट्स, ज्वेलर्स और रियल एस्टेट एजेंट्स के नामों एड्रेस टैक्स दफातर को भिजवा दिए हैं। मेंबर इन लैंड रेवेन्यू ऑपरेशंस डॉक्टर अशफाक ने नॉन फाइलर्स और जीरो इनकम जाहिर करने वालों की फील्ड वेरिफिकेशन की हिदायत कर दी है। बरवक्त टोकन टैक्स अदा नहीं किया तो अगले साल भारी जुर्माना अदा करना पड़ेगा। महकमा एक्साइज ने अगले माली साल में टोकन टैक्स नादहिंदा गाड़ी मालिकान से 100% जुर्माने के साथ टोकन टैक्स वसूल करने का फैसला कर लिया है। टोकन टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ सख्त एक्शन का फैसला कर लिया गया है। डायरेक्टर रीजन सी राना कमरुल हसन सजाद का कहना है कि 30 जून तक टोकन टैक्स अदा न करने वाले गाड़ी मालिकान को अगले माली साल में 100% जुर्माना करने का फैसला किया है। लाहौर में 1.5 लाख के करीब टोकन टैक्स नादहिंदगान गाड़ियाँ मौजूद हैं, जिनके मालिकान के जिम्मा 1.5 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं। डिफॉल्टर से टोकन टैक्स वसूली के लिए रोजाना शहर की तमाम अहम शाहराहों पर ETOs की सरबराही में नाकाबंदी की जा रही है। एक हफ्ते में टोकन टैक्स नादहिंदगान से नाकाबंदी के दौरान 2 करोड़ से जायद का टोकन टैक्स वसूल किया गया। खबरदार, होशियार, आपका किराएदार कब्जा ग्रुप का हिस्सा हो सकता है। शहर में होने वाले 80% कब्जा किराए मालिकान के लिए आड़ में किए गए। लाहौर पुलिस ने ऐसे अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला किया है। शहर में कब्जा ग्रुप से मुतालिक बड़ा इंकशाफ हुआ। पुलिस के मुताबिक 80% कब्जे किराएदारी और गिरवी मकान लेने की आड़ में किए गए। मकान या दुकान में किराएदारों का इंदराज न होने से वही किराएदार कब्जा माफिया का रूप धार लेता है। पुलिस ने ऐसे अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला किया है। किराएदारों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला CCPO के एंटी कब्जा सेल की मीटिंग में किया गया। CCPO गुलाम महमूद डोगर का कहना है कि किराएदारी के बहाने जायदादें आने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। थानों में किराएदारों के इंदराज को 100% यकीनी बनाया जाएगा। उसने घर किराए पे लिया होता है, उसको भी थोड़ी सी डिटरेंस होती है कि उसको पता है कि थाने में मैंने रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है, और अगर वो कोई उनका आपस में कोई डिसएग्रीमेंट होता है तो लोकल पुलिस को उसकी पूरी सिचुएशन का पता होता है। एक तो ये बात है। दूसरा ये कि ये जो कब्जा ग्रुप हैं और ये जो इनकी बिल्कुल लाहौर के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है, और मैं बार बार ये बात रिपीट करता हूँ कि जब भी कब्जे की कोई कंप्लेंट आएगी तो पुलिस उसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन करेगी। आपको बताएं कि वन वे की खिलाफ वर्जी पर सिर्फ चालान नहीं होगा, लाइसेंस भी मुअत्तल होगा। CTO लाहौर मुंतजिर मेहदी ने अहकाम जारी कर दिए हैं।
शहरियों को हादसात और ट्रैफिक जाम से बचाने के लिए CTO लाहौर का बड़ा फैसला सामने आ गया। अब वन वे ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी पर चालान के साथ साथ लाइसेंस भी मुअत्तल किया जाएगा। CTO लाहौर का कहना है कि वन वे ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी पर कोई भी रियायत का मुस्तहिक नहीं होगा, क्योंकि ऐसा करने वाला अपने साथ दूसरों की जान भी खतरे में डालता है। CTO ने बताया कि एक या एक से ज्यादा बार खिलाफ वर्जी करने वालों के लाइसेंस कैंसिल करने के लिए वर्किंग पेपर्स तैयार किए जा रहे हैं। जहांगीर तरीन की शुगर मिल्स का ऑडिट करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। हाई कोर्ट ने शुगर मिल्स को भिजवाए गए नोटिस मुअत्तल करने के हुक्म में 11 जून तक तौसीह कर दी। जस्टिस मोहम्मद राहील कामरान शेख ने JDW शुगर मिल्स के 2015 के ऑडिट नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजारों के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि FBR 5 बरस का अरसा गुजरने के बाद किसी भी कारोबारी इदारे का ऑडिट करने का मजाज नहीं। टैक्स ऑडिट का कानूनी अरसा गुजर चुका। ऑडिट नोटिस गैर कानूनी और बदनीयती पर मबनी है। दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की कि अदालत FBR का 2015 का ऑडिट करने का नोटिस ज़ायदल मियाद करार देकर कलअदम करार दे। दरख्वास्त के हतमी फैसले तक FBR को JDW शुगर मिल्स के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोकने का हुक्म देने की भी इस्तदा की गई है। लाहौर हाई कोर्ट में ग्रीन पार्क्स पर गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान अदालत में पेश हुए। अदालत ने शहर में पौधे लगाने की मुहिम में प्राइवेट पार्टनरशिप और शहरियों को शामिल करने की हिदायत की है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने मुबश्शिर अलमास की दरख्वास्त पर समाअत की। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की जानिब से पंजाब हुकूमत के वकील ने नए दरख्त लगाने के हवाले से रिपोर्ट पेश की। कमिश्नर ने अदालत को आगाह किया कि 2500 एकड़ रकबे पर जंगलात का मंसूबा है। 40 लाख नए दरख्त लगाए जाएंगे। चीफ जस्टिस ने कमिश्नर से इस्तफसार किया कि दरख्त लगाने के कितने सालों की प्लानिंग है। कमिश्नर ने जवाब दिया कि 2023 तक की प्लानिंग है। चीफ जस्टिस ने कमिश्नर से मुकालमा करते हुए कहा कि आप 10 से 12 जगहों पर पिकनिक पार्क्स बनाने पर भी गौर करें। पूरी प्लानिंग करके इसमें प्राइवेट पार्टनरशिप्स और अवाम को भी शामिल करें। इससे हुकूमत का पैसा बच जाएगा। अदालत ने केस की मजीद समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी करते हुए अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर कहते हैं सियासी मुखालिफिन सब्र के साथ आम इंतखाबात का इंतजार करें। इलेक्शन 2023 में ही होंगे। सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान ने गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से गवर्नर हाउस में मुलाकात की। मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सियासत के अंदाज निराले हैं। अवाम की हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए मजहबी रंग सबसे नुमाया है। बेनज़ीर भुट्टो हों या इमरान खान, उनकी तस्वीर के चर्चे जुबान ज़द-ए-आम हैं। इस फहरिस्त में ताज़ा इजाफा मरियम नवाज का हुआ है। सियासतदानों की जानिब से तस्वीर के इस्तेमाल पर देखते हैं ये रिपोर्ट। पाकिस्तानी सियासत को मजहब से अलग नहीं किया जा सकता। लोगों की मजहब से जज्बाती वाबस्तगी को देखते हुए सियासी रहनुमा भी किसी न किसी तरह मजहबी रंग में रंगे नजर आते हैं। पीपल्स पार्टी को तरक्की पसंद जमात समझा जाता है, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो अक्सर तस्वीर थामे नजर आती थीं। पीपल्स पार्टी की मीटिंग हो या सरकारी इजलास, बेनज़ीर भुट्टो के हाथ में तस्वीर जरूर होती थी। वज़ीर आज़म इमरान खान की तस्वीर के बड़े चर्चे हैं। वज़ीर आज़म अक्सर तस्वीर का विर्द करते नजर आते हैं। कबीना इजलास हो, असेंबली का सेशन, पार्टी मीटिंग या कोई सरकारी तकरीब, वज़ीर आज़म हमेशा तस्बीह के साथ ही नजर आते हैं। वज़ीर आज़म की देखा देखी वसीम अकरम प्लस वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने भी तस्बीह थाम ली। इस फहरिस्त में नया इजाफा मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का है। मरियम नवाज अदालत पेशी पर आई तो तस्बीह इनके हाथ में थी। फर्क सिर्फ इतना था कि मरियम नवाज ने रवायती तस्बीह के बजाय डिजिटल तस्बीह का इंतखाब किया। हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा शहरियों की वैक्सीनेशन के लिए कोशां है। वज़ीर सेहत ने बंद रोड यूसी 71 में मोबाइल वैक्सीनेशन यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। मोबाइल वैक्सीनेशन यूनिट से 200 से ज़ायद शहरी कोरोना वैक्सीन लगवा चुके हैं। अहले इलाका ने फूलों की पत्तियां निछावर करके सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का इस्तकबाल किया। इस मौके पर डॉक्टर यास्मीन राशिद ने चेयरमैन यूसी 71 जहांगीर खान को खुद कोरोना वैक्सीन लगाई। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने साफ सुथरा खूबसूरत लाहौर प्रोग्राम के तहत महकमों को जिम्मेदारियां सौंप दी। कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत इजलास में तमाम मुतल्लिका महकमों ने शिरकत की। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने कहा कि लाहौर में शाहराहों, सर्विस लेन्स, सेफ्टी फीचर्स, ट्रैफिक ब्यूटिफिकेशन और दीगर को बेहतर किया जाएगा। कमिश्नर लाहौर ने PHA को शहर में कपड़े और प्लास्टिक के स्टीमर्स ख़त्म करने की हिदायत की। कमिश्नर लाहौर ने कहा कि शहर के 9 जोन्स में 29 अहम रोड्स का कॉरिडोर्स की निशानदही की गई है।
और आपको बताएं, शेर शाह क्लब ने क्रिसेंट क्लब को 21 रन से शिकस्त देकर यासीन अख्तर मेमोरियल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट जीत लिया। इत्तेफाक ग्राउंड पर होने वाले फाइनल में शेर शाह क्लब की टीम पहले खेलते हुए 20वें ओवर में 178 रन बनाकर आउट हो गई। मोहम्मद अब्दुल्ला 49, उसामा जाहिद 34, जफर इकबाल 25 और मोहम्मद उमर 20 रन बनाकर नुमाया रहे। क्रिसेंट क्लब के असदुल्ला और सदाकत अली ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में क्रिसेंट क्लब 19वें ओवर में 157 रन बनाकर आउट हो गया। राना अरसलान 60, मोहम्मद हसन 21 और अख्तर शाह 20 रन बनाकर नुमाया रहे। शेर शाह रिजवान ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। शेर शाह क्लब के मोहम्मद अब्दुल्ला मैन ऑफ द मैच करार पाए। स्टूडियो से फिल वक्त इतना।